Dear student, dear fellows and honorable viewers who views this video lectures, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is, first of all, I will wish to introduce myself. My name is Kalimullah, subject specialist biology from GHSS number 3, Mission Kalimullah, subject specialist biology from GHSS number 3, Mission Lucky Marwat. Today I will deliver the topic respiration. 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 First of all, what is respiration? Respiration क्या होता है? Respiration, it is the redox reaction. Respiration is the redox reaction in which an organic compound that is glucose is oxidized into carbon dioxide and oxygen is reduced into water with the release of energy. So respiration is a redox reaction. Redox reaction means in which one reactant is reduced and the other reactant is oxidized. So when in a chemical reaction, one reactant is reduced and other reactant is oxidized, so such type of chemical reaction is called as redox reaction. So respiration, it is one of the redox reaction in which an organic compound that is glucose is oxidized into carbon dioxide and oxygen is reduced into water with the release of energy. So इस रिएक्शन में चूंकि एनर्जी रिलीज होता है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रिस्पिरेशन, इसका दूसरा नाम है, it is also called as factory for production of energy. It is also called as factory for production of energy. Whenever body needs energy, so at that time body must respire. So with the help of respiration, energy is released and this energy is used in work done. So यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन करेंगे कि respiration redox reaction किस तरह है, how it is a redox reaction. एक होता है रिडक्शन और इसके मुकाबले में दूसरा रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उस रिएक्शन को आप नाम देंगे रिडक्शन. या जिस रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको भी आप नाम देंगे रिडक्शन. या जिस रिएक्शन में
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको फिर आप नाम देंगे रिडक्शन। रिडक्शन को तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके मुकाबले में ऑक्सीडेशन इट इज द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और गेन ऑफ ऑक्सीजन और loss of electron. So when in a chemical reaction loss of hydrogen or gain of oxygen or loss of electron occurs, so such type of chemical reaction is called as oxidation. और इसके opposite जिसमें gain of hydrogen होता है या loss of oxygen or gain of electron, so such type of chemical reaction should be called as reduction. और जिस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एट अ टाइम होता है, एक रिएक्टेंट रिड्यूस होता है और इसके मुकाबले में दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, सो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शुड बी कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एट अ टाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इसी जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसके साथ हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर and selection. This is glucose and this is oxygen. यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ग्लूकोज और साथ में दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। ग्लूकोज में अगर आप देखें यहाँ पे इसकी टॉक्सिसिटी इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में it is converted into कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज से प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन it is released from glucose and enters into oxygen. यहाँ पे ग्लूकोज से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है and it is converted into carbon dioxide. That's why this glucose is oxidized. ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है और ऑक्सीडेशन की वजह से ग्लूकोज इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन से प्रोडक्ट में बनता है वाटर। सो गेन ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है and converted into water, while glucose it is oxidized and converted into carbon dioxide, और साथ में this is energy is also released. Negative sign represents release of energy. In exothermic reaction, energy will be shown with a negative sign. It represents exothermic reaction. So जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया कि respiration is a redox reaction in which glucose is oxidized into carbon dioxide, oxygen is reduced into water with the release of energy. So इस तरह आप respiration को डिफाइन कर सकते हैं। अब एनर्जी रिलीज की वजह से, क्योंकि respiration ये वो प्रोसेस है जिस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीजिंग की वजह से इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जिस तरह आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें यही रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, और रिस्पायरेशन प्रोसेस की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, और इस एनर्जी रिलीजिंग की वजह से आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं।
अब ये रिस्पिरेशन इट इज फॉर ऑफ टू टाइप्स ऑफ respiration. Based on availability of oxygen, based on the presence or absence of oxygen, based on the presence or absence of oxygen, respiration is of two types. Two types of respiration. Based on the presence or absence of oxygen, respiration is of two types. इसमें एक टाइप है, एक को कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक respiration, और दूसरे का नाम है anaerobic respiration. तो एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोब का मतलब है ऑक्सीजन. यहाँ पे एरोब मीन्स ऑक्सीजन. एन का मतलब है विदाउट. एन मीन्स विदाउट एंड एरोब मीन्स ऑक्सीजन. यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन जिस तरह मैंने पहले बताया कि एरोब का मतलब है ऑक्सीजन. एरोब मीन्स ऑक्सीजन. सो एरोबिक रिस्पिरेशन ये वही रिस्पिरेशन प्रोसेस होगा which will occur in the presence of oxygen. So aerobic respiration, that type of respiration, that type of respiration which occurs in the presence of oxygen. Aerobic respiration is that type of respiration which occurs in the presence of oxygen. और इसके मुकाबले में anaerobic respiration is that type of respiration which occurs in the absence of oxygen. एनारोबिक रिस्पिरेशन, एन का मतलब है विथ आउट. एन मीन्स विथ आउट एंड एरोब मीन्स ऑक्सीजन. So anaerobic respiration, that type of respiration, that type of respiration which occurs in the absence of oxygen. Anaerobic respiration is that type of respiration which occurs in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसको आप नाम देंगे एनाएरोबिक रिस्पिरेशन. एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इसका दूसरा नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज
also called as fermentation. It is also called as fermentation. Fermentation, it is the second name of anaerobic respiration, and the study of fermentation is called as zymology. Study of fermentation, study of fermentation is called as zymology. Zymology, it is the study of fermentation. और यही वजह है कि इंजाइम को जो नाम दिया गया है इंजाइम, इंजाइम का मतलब है एंजाइम। जैसे भी दो अल्फाज हैं, इनका मतलब है एन, इनका मतलब है एन, और जैम का मतलब है फर्मेंटेशन। यह इंजाइम की जो डिस्कवरी हुई थी, ये इंजाइम दिस वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो इसी वजह से इस प्रोटीनेशियस कंपाउंड को भी नाम दिया गया इंजाइम, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एज ज़ाइमोलॉजी। अब फर्मेंटेशन इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। Fermentation, it is further of two types. Two types of fermentation. एक इनकी स्पेस में based on the end product, based on the end product. फर्मेंटेशन के दौरान जो एंड प्रोडक्ट बनता है, उसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसी एंड प्रोडक्ट की बेस पे फर्मेंटेशन इट इज ऑफ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इस टू टाइप्स में एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको जो नाम दिया गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट इज बिकॉज इस फर्मेंटेशन के दौरान जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो दैट टाइप ऑफ दिस फर्मेंटेशन, दैट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन which the end product lactic acid is produced. That type of fermentation in which the end product lactic acid is produced, so इसी वजह से इसको नाम दिया गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और दूसरा जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसी वजह से कहा जाता है कि इस दौरान जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। दैट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, दैट टाइप ऑफ fermentation
fermentation is that type of fermentation in which the end product ethyl alcohol is produced. So चूंकि इसमें एंड प्रोडक्ट का नाम है इथाइल अल्कोहल, सो अल्कोहल की वजह से इस फर्मेंटेशन को नाम दिया गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हमारे बॉडी में in case of a human during a hypoxic condition, in case of a human being during hypoxic condition, lactic acid fermentation occurs. In case of human beings during hypoxic condition, lactic acid is produced. हाइपोक्सिक कंडीशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हाइपोक्सिक कंडीशन क्या होता है? हाइपो का मतलब है कम, ऑक्सिक का मतलब है ऑक्सीजन। दैट इज whenever in our body the concentration of oxygen is reduced. So in that case, in case of aerobic respiration, anaerobic respiration start और anaerobic respiration में हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड it is a fatigue material. Lactic acid is a fatigue material because whenever lactic acid fermentation occurs, this lactic acid is stored inside the muscles. Lactic acid is stored in muscles, and in muscle it causes fatigue. So whenever you feel fatigue, so it is the symptoms that in our body at that time lactic acid fermentation occurs. This lactic acid fermentation process, it is reversible during again availability of oxygen. इसका जो प्रोसेस होता है वो इसी तरह होता है। Both lactic acid fermentation and alcoholic fermentation occur in two steps. Both lactic acid fermentation and alcoholic fermentation is completed in two steps. दोनों टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है और उसके जो दो स्टेप्स हैं, दो स्टेप्स यही हैं। पहले स्टेप में ग्लूकोज, इसका फार्मूला है C6H12 O6। फर्स्ट स्टेप में it is converted into pyruvic acid. पहले स्टेप में ग्लूकोज it is converted into pyruvic acid और ये pyruvic acid में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं because pyruvic acid is 3 कार्बन कंपाउंड और ग्लूकोज वो है 6 कार्बन कंपाउंड। सो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं जिसका नाम है पायरुविक एसिड। ये फर्स्ट स्टेप है। अब दूसरे स्टेप्स में
इस पायरिक एसिड से यह बनेगा लैक्टिक एसिड या इससे बनेगा इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये है सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में अगर आपके पास पायरिक एसिड से बन गया लैक्टिक एसिड तो उसको फिर आप नाम देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर सेकेंड स्टेप में पायरिक एसिड से बन जाए इथाइल अल्कोहल तो फिर इसको आप नाम देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के साथ साथ इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। क्यों? वजह यह है, इसका रीजन ये है कि पायरिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड व्हाइल इथाइल अल्कोहल इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो तीसरा जो कार्बन है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह लैक्टिक एसिड इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सो लैक्टिक एसिड के साथ कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता बिकॉज पायरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन। व्हेन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन 2 कार्बन। सो दूसरा जो कार्बन है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है सेकेंड स्टेप में। सो आप जो डिफरेंशिएट करेंगे कि आपके पास जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो है लैक्टिक एसिड या अल्कोहल, वो डिपेंड करता है सेकेंड स्टेप में। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो दोनों के लिए सेम है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरिक एसिड। ये स्टेप दोनों के लिए कॉमन है। दोनों फर्मेंटेशन प्रोसेस जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं वो है बेस्ड ऑन सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में एंड प्रोडक्ट को आप देखेंगे कि फर्मेंटेशन के दौरान सेकेंड स्टेप में आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर सेकेंड स्टेप में फर्मेंटेशन के दौरान आपके पास एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए लैक्टिक एसिड तो उसको फिर आप नाम देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर सेकेंड स्टेप में आपके पास प्रोड्यूस हो जाए इथाइल अल्कोहल तो फिर उसको आप नाम देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो इट वाज ऑल अबाउट एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। अब हम एरोबिक रिस्पिरेशन को डिटेल पढ़ेंगे। ये जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप second type is aerobic respiration. Aerobic respiration. एरोबिक रिस्पिरेशन में जिस तरह आप लोगों ने पहले पढ़ा, एरोबिक रिस्पिरेशन इज दैट टाइप ऑफ respiration which occurs in the presence of oxygen. That type of respiration which occurs in the presence of oxygen. That type of respiration which occurs in the presence of oxygen, so such type should be called as aerobic respiration. अब aerobic respiration it is completed in 3 steps. Completed in 3 steps. 3 steps में एरोबिक रिस्पिरेशन वो कंप्लीट होता है। अब इस 3 स्टेप्स के नाम क्या है? नाम, इसके जो नाम है इसमें पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। पहला जो स्टेप है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस।
साइकिल। और तीसरा जो स्टेप्स है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें एरोबिक रिस्पिरेशन कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप्स है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा जो स्टेप्स है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब पहले स्टेप को हम डिटेल पढ़ेंगे। इसका लोकेशन क्या है, ये तीनों स्टेप्स बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है। ग्लाइकोलिसिस का जो लोकेशन है, glycolysis, it occurs in cytosol of cytoplasm. Glycolysis, it occurs in cytosol of cytoplasm. और ये जो बाकी 2 स्टेप्स हैं, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, both occurs inside the mitochondria. Occurs in mitochondria. Krebs cycle and electron transport chain, it occurs in mitochondria. क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि रिस्पिरेशन ये वो प्रोसेस है जिस दौरान एनर्जी रिलीज होता है। अब एनर्जी के लिए 3 रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि इसका जो मेजर पोर्शन है क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दोस 2 स्टेप्स। इस 2 स्टेप्स में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है एज कंपेयर टू ग्लाइकोलिसिस, और ये दोनों स्टेप्स इट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि यही एनर्जी तो साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म में भी प्रोड्यूस होता है, आप साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म को पावर हाउस क्यों नहीं कहते? सो रीजन ये है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, लेकिन क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो ग्लाइकोलिसिस के मुकाबले में क्रेब्स साइकिल में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सो साइटोसोल के मुकाबले में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो इसी वजह से आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहेंगे एज कंपेयर टू साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। So first reaction is glycolysis. Glycolysis. ग्लाइकोलिसिस ये 2 अल्फाज हैं। यहाँ पे ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन। स्ट्रिंग के ग्लाइकोलिसिस ये वो स्टेप्स हैं जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वजह से इसको नाम दिया गया ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस समटाइम्स स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस ये रिएक्शन है। नॉट, इट इज रॉन्ग। ग्लाइकोलिसिस ये एक रिएक्शन नहीं है। ग्लाइकोलिसिस इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। ये एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ग्लाइकोलिसिस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल 10 केमिकल रिएक्शन। ये एक रिएक्शन नहीं है,
बल्कि ये 10 केमिकल रिएक्शन का मजमूई नाम है, जिसमें आप यही 10 केमिकल रिएक्शन अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से 10 केमिकल रिएक्शन होते हैं. सो ग्लाइकोलाइसिस इट इज नॉट अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, बट इट इज a name of combination of 10 chemical reaction. So glycolysis it is a step, it is not a single reaction. Glycolysis it is a first step. Glycolysis is the first step of aerobic respiration, in which an organic compound that is glucose is break down into two molecules of 3 carbon compound called as pyric acid in a series of total 10 chemical reaction. तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 केमिकल रिएक्शन होंगे और इस 10 केमिकल रिएक्शन के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनता है पायरिक एसिड, वो एंड प्रोडक्ट होगा आफ्टर 10 केमिकल रिएक्शन. तो इसका इस तरह होता है ग्लूकोज C6H12O6 6 carbon compound, it is converted into 2 molecules of 3 carbon compound called as pyric acid. लेकिन ग्लूकोज और पायरिक एसिड बनने के में 10 रिएक्शंस होंगे, यानी आफ्टर 10 केमिकल रिएक्शन आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है पायरिक एसिड वो बनेगा. थैंक यू. अस्सलाम.